Okay, so in our previous class, we discussed about graphs and we discussed that graphs are data structure like any other data structure, array, stack, queue, linked list or tree. And then we discussed difference between tree and graphs. After that, we talked about its applications and then we discussed about representation of graph, which is adjacency matrix and adjacency list. So in case of matrix, you have a um, 2D matrix, or you can say 2D array, where 1 represents there is an edge between these two vertices, and 0 represents that there is no edge between these two vertices, whichever vertex you pick. Suppose you are picking 1 from here and 2 from here, then you can see the intersection here. There is 1 at this place, that means there is edge between 1 and 2. And similarly, if you pick this 4 and 2, you can see there is 0. That means there is no edge. Right. So it's in case of adjacency matrix. If we talk about adjacency list, then we have all the vertices like this. So these are vertices 0, 1, 2, 3 and 4. And then on the right side we have all the vertices that are connected to this particular vertex. So in this case, 0 vertex is connected to vertex 1 and 4. So we have these two vertices here. Right. So we discussed about space and time complexity of all these representation in case of some operations, and operation could be like edge. So if you want to check whether there is an edge between these two vertices, then you can use any of these representation, or if any representation is given to you, then you can find out whether there is an edge between two vertices or not, and this will be completed in OV time. And there are a lot of other operations, so you can see adjacency list and matrix. If you want to check about vertex addition, deletion, edge addition or deletion, then this is the complexity, and that we have discussed in our previous lecture. If you are not present in that lecture, you can see the video that I have uploaded on YouTube. And then I give you some homework. So you need to either take some Facebook data or create some Facebook data using simulation or using your programs. Suppose you have some student, maybe 60, you can take 60 or maybe 10 student in the beginning, and then you have to create a form of graph, which could be adjacency list or matrix, and store all these things in a file, maybe a CSV file. Suppose you have 0 here and this is 1579. That means 0th user is friend with first user, 5th user, 7th user and 9th user, and so on if there are other users in this line, and similarly for others. Right. So you need to read this file and create its representation in these two forms, list and matrix. So by doing this, you will be able to create graphs in these two forms. So first you can do it for 10 students, and then you can generalize this data generation for n number of students. Now what we have to do, we have to find time spent in performing above operations or operations like addition and deletion of vertices and edges. So once you have graph, you can find out the time. So you can use multiple functions that are available in different programming languages, and in Python, like we have time. So you can find out start time and then end time whenever you are performing an operation, and then calculate the difference between these two. Right. For this problem, I have told you to do perform another function, which is list mutual friend. So suppose you are passing two students here or two users here, you need to return a list that contains all the mutual friends of these two users. Right. So is this question clear to everyone?
Any doubt in this? Any doubt in this question? No, sir. Okay, fine. So now we are going to discuss about DFS and BFS. So I hope you already know a bit about DFS and BFS, but still will see it from the perspective of implementation. So if we talk about DFS and BFS, basically these two algorithms are used for unweighted graph. So if there is weight, you can use some other algorithms like Dijkstra's algorithm, Bellman-Ford, and so on. But as of now, first we'll talk about these two algorithms. So DFS means depth first search, and BFS means breadth first search. I hope you already know these things, so we'll not talk much about it. In DFS you use stack, and in BFS you use queue. So when you are using these two data structures, this is the reason of this name, depth and breadth. We'll see in a moment. So you can use these algorithms to find shortest path between two vertices, but the problem is you can do that for unweighted graph. So if you have a graph like this, so in case of BFS and DFS, we assume that every weight is 1 or maybe similar, right? So you can say that it's 1 or similar. It means if one edge is 5, then all the edges are 5, right? So there is nothing like if you choose this or another one, there is no difference. So when we talk about BFS, what it does, suppose this is A, B, C, D, E, and F. So in case of BFS, you first explore this and then explore its adjacent vertices. This is the case of BFS. But in case of DFS, when you explore this, you go in the depth of this. So you will go like this and then come back, then go this side. So that's why its name is depth first search and its name is breadth first search. So when it's suitable to use BFS and when it is suitable to use DFS, can anyone tell me? Can anyone tell me when BFS is suitable to use and when DFS is suitable? Anyone? मुकुल, मुकुल कौशिक, बता सकते हैं आप कब आपको BFS यूज करना चाहिए, कब DFS यूज करना चाहिए? जो बच्चे यहाँ पे नहीं होगा उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। मुकुल आप नहीं हैं यहाँ पे? ठीक है। मुस्कान शर्मा, मुस्कान, आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब जो नहीं है वही आवाज उनकी नहीं आ रही है बस। पारस चौहान, पारस, यस सर। ठीक है। पारस बताइए, BFS और DFS कब सुटेबल रहते हैं यूज करने के लिए, कब यूज कर सकते हैं हम? BFS किस सर केस में बेटर रहेगा और DFS किस केस में बेटर रहेगा? सर डीएफएस सर जब कहते हैं हमें सर पूरे कहते हैं ट्री में सर्च करना हो, पूरे ट्री में सर्च करना, ओके। और सर बीएफएस जब कहते हैं बीच में कहीं पे मतलब ऐसा पूरे ऐसा ट्री पे ना करना हो। चलो ठीक है, आपने कोशिश की, अच्छी बात है। कोई और बता सकता है? मुस्कान आप बता सकती हैं? मुस्कान दोबारा कैसे आ गए वापस? मुस्कान शर्मा, सर बेसिकली साइकिल्स एक ग्राफ में डिटेक्ट करने के लिए काम आता है।
वो ठीक है कि साइकिल डिटेक्ट कर सकते हैं आप इससे। और सर साथ ही उसमें मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी हम फाइंड कर सकते हैं विद मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री, हम मतलब अनवेटेड ग्राफ जैसे में। मिनिमम स्पैनिंग ट्री वैसे अलग प्रॉब्लम है, बट चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या, जैसे इन्होंने बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, देखो जैसे ये है डीएफएस है, डीएफएस क्या काम कर रहा है, डीएफएस आपको डेप्थ पे जा रहा है। अभी तो मैंने आपको छोटा सा ग्राफ दिखाया है यहाँ पे, वी हैव ओनली 5 और 6 नोड्स, राइट, 3 and 3 6 नोड्स। पर बड़ा ग्राफ भी हो सकता है, लाइक 6000 और मे बी 1000 और मे बी 1 lakh नोड्स। तो what DFS is doing, DFS is picking one node and then going depth of that node, मतलब A पे जाएगा, B पे, D पे, and so on, इस तरीके से जाएगा। बट इमेजिन कीजिए सॉल्यूशन जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, या जो आप वर्टेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, मान लीजिए वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कहीं, या इस फर्स्ट लेवल पे कहीं एग्जिस्ट करती थी ऑन दी राइट साइड, बट आप तो इसी में चले गए पहले, राइट। तो BFS कब सुटेबल रहता है, BFS तब सुटेबल रहता है जब आप जो वर्टेक्स सर्च कर रहे हैं, vertices to be searched are closer, ठीक है, are closer to source। and similarly DFS कब सुटेबल रहेगा, when vertices to be searched are far from source। तो इसके जब आपको यहाँ पे दूर जाना हो, कहीं दूर, आपको पता है कि दूर हो सकता है जो सोल्यूशन है, तो उस केस में आपको DFS यूज करना बेटर रहेगा, राइट। जब पास हो सकता है तो उस केस में बेटर है BFS यूज करना, ठीक है। ये और बाकी साइकिल फाइंडिंग एंड ऑल दैट, वो तो खैर और एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो देखेंगे धीरे धीरे, बट फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए। दूसरा क्या है, दूसरी चीज इसमें आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपको फाइंड आउट करना है, आप इसको किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ को, जो कि आपने पहले सीख लिया है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कर सकते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, V+E। V+E, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मैट्रिक्स में V², ठीक है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं हम, क्योंकि अब ग्राफ तो देखो हमको दिखता है ऐसा है जिस तरीके से हम बनाते हैं, बट वो रिप्रेजेंट तो एरे की फॉर्म में ही कहीं होता है ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे कोई ग्राफ जैसा दिख रहा हो मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर तो सिंपल एरे जैसा होता है कुछ ना कुछ। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया, मेरे ख्याल से आपके पास BFS DFS के लेक्चर आए होंगे तो आपको क्लियर होंगी चीजें। अगर आपको इनकी एल्गोरिदम को और अच्छे से पढ़ना है, BFS और DFS की एल्गोरिदम को और अच्छे से अगर आपको पढ़ना है, तो अगर आप अ, आपके पास एल्गोरिदम की बुक है, कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं आप लोग? हम्म, सर करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग यूज कोई? सर अगर नहीं करते हैं तो जो स्टैंडर्ड बुक है, इंट्रो टू एल्गोरिदम्स, और इसके जो राइटर हैं, जो मेन राइटर जिस नाम से बुक जानी जाती है, वैसे तो और भी हैं, बट कोरमैन अगर आप बोलेंगे तो यही बुक आपको कोई देगा। तो आप लाइब्रेरीज तो खैर मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप अभी ले सकते हैं, लेकिन आप इसकी सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं कहीं से, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगी, या आप खुद के लिए बाई कर सकते हैं, इसकी आपको लंबे टाइम तक जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन, आई थिंक आपके प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ था, मुझे नहीं पता आपने किया कि नहीं किया अभी तक, बट हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू वर्टिसेस U and B using BFS and DFS। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? कोई बता सकता है?
कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। मान लीजिए आप पहले BFS का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। इस बात अवेलेबल या एग्जिस्ट करके कुछ या ऐसे इस बात और BFS, और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पास होंगी और उसके नीचे हम कहीं एल्गोरिदम लिखेंगे जो आपको ये बताएगी कि पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। इस टाइप का एक फंक्शन बना लेंगे और सिमिलरली हम एक इस पाथ DFS एक फंक्शन और बना लेंगे जो कि DFS के लिए फाइंड आउट करेगा। इसमें आपका काम रहेगा, ये आपके पास कहीं से पास करेंगे आप इसमें, तो एक ग्राफ पास कर देंगे जो कि एडजेसेंसी लिस्ट या मैट्रिक्स की फॉर्म में आपका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, और उसके बाद आप इसमें सोर्स नोड एंड डेस्टिनेशन नोड पास कर देंगे, और सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा नीचे वाले में। तो ये एक जनरल फंक्शन बन गया हमारा, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे कि इनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोई ग्राफ लेता हूं, जैसे ये नोड है 0 1 2 3 4 एंड 5, तो कोई भी एल्गोरिदम अगर आप पिक करें उससे फर्क नहीं पड़ता आप BFS पिक कर रहे हैं या DFS पिक कर रहे हैं। सपोज आप BFS पिक करें पहले से, अगर आप BFS पिक करें तो BFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं बच्चों? BFS में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक नहीं करते हैं, क्यू यूज करते हैं, ठीक है, क्यू यूज करते हैं। तो क्यू यूज करने पे कैसे हम प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले देखो ग्राफ पास होगा तो ये मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग वर्टेक्स है, इसको सोर्स मान लेते हैं, और सोर्स से हमको ये फाइंड आउट करना है कि क्या 3 में और सोर्स में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है क्या। तो BFS के थ्रू कैसे करेंगे हम ये काम? मुझे थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहो आप, तब आगे बढ़ते रहेंगे। देखो ऐसे में अगर आप डिस्कशन करेंगे तो ही आप सीखेंगे, और मैं भी आपको थोड़ा ज्यादा सिखा पाऊंगा जब आप डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप भी चुपचाप रहेंगे और मुझे लगेगा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस रिकॉर्डिंग का मजा नहीं है फिर। नहीं तो मैं फिर 10 मिनट की वैसे रिकॉर्डिंग नहीं कर लेता, और वैसे रिकॉर्डिंग के लेक्चर तो आपके पास आ भी रहे हैं और आई थिंक आपको इंटरनेट पे अवेलेबल भी हो जाएंगे। तो लाइव क्लास करने का मतलब यही कि आप थोड़ा डिस्कशन में पार्ट लें। तो कौन बताएगा आप में से मुझे? रितिका सिंह आप बताएंगी? यस सर। बताइए बच्चे, कैसे BFS का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ग्राफ बनाया, और BFS यानी कि मैं क्यू का इस्तेमाल करते हुए ये पता करना चाहता हूँ कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच कोई पाथ है कि नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो देखने से तो आपको पता चल रहा है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जाएं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आए तो आपके पास पाथ है, या आप और किसी रास्ते से भी जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये वाला रास्ता है, इस वाले रास्ते को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ जाके और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास रास्ते बहुत हैं। तो अब बताइए, अब BFS का इस्तेमाल करते हुए कैसे होगा ये काम? सर सबसे पहले हम लोग इनिशियली सर सोर्स से शुरू करेंगे, उसके बाद सर हर एक वर्टिसेस को सर चेक करते जाएंगे। सर जहाँ पे अगर हमारा अगर लूप अगर आ गया, जब तक सर हम लोग तब तक रन कराएंगे, जब तक रन अ लूप सर अंटिल जब तक क्यू सर एम्प्टी ना हो। लूप से क्या पता चलेगा? लूप से क्या पता चलेगा आपको? अगर जैसे सर लूप अगर हुआ तो सर हमारा फिर मतलब ये तो साइकिल पूरी मतलब तरीके से सर बन गई। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि लूप का मतलब, अब देखो ये ग्राफ मैं आपको देता हूँ 0 1 2 और 3, क्या 0 से 3 के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है? नो सर। तो फिर यहाँ तो लूप एग्जिस्ट भी कर रही है। अब बताओ, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो लूप आपको पता चल गया, उससे थोड़ा ना कुछ फायदा हुआ। और सोचो, और बताओ कुछ, और कौन बताएगा? दूसरे बच्चे से पूछते हैं, कोई ने आपने कोशिश की, बहुत अच्छी बात है। रोहित बिनवाल, आप बताइए।
रोहित बिनवाल, हो तुम यहाँ पे? ये तो भाग गए यार सारे के सारे बच्चे। वर्तिका भंडारी, भागो मत, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको सारे आंसर सही देने हैं, आपको तो बस डिस्कशन का पार्ट बनना है ताकि हम इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे इसको रख सकें। वर्तिका भंडारी, वर्तिका आप हैं यहाँ पे कि नहीं है? क्योंकि जो बच्चा नहीं होगा उसको मैं रिमूव करता रहूंगा। अगर आप होंगे तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। वरुण पाठक, यस सर। तो वरुण जी बताइए कैसे बीएफएस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये फाइंड आउट करने के लिए कि पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। आपको डेटा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, क्यू का इस्तेमाल करना है आपको, क्यू की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया नहीं है जो दिया हुआ था? शिवांगी रावत, शिवांगी बताइए। श्रेय सिंगल, सर सबसे पहले तो जो हमारा मतलब इनिशियल सोर्स है हम उसको मतलब सोर्स नोड एक तरीके से मान लेंगे क्यू का, जो ठीक, हमारे जैसे जीरो है। तो हाँ उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्यू में मतलब आगे आगे की तरफ फॉरवर्ड मतलब ठीक है। चलेंगे। एक रुको, इतना काम कर लेते हैं जो आपने बोला अभी। आपने हाँ बोला सर। कि इसको, मतलब आपका कहने का मतलब मैं थोड़ा ये समझ पा रहा हूँ कि इसको हम क्यू में डाल देंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो सर। क्यू में डाल दिया, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे आप पाएंगे कि ये दो नोड्स हैं इसके पास, है ना? हाँ सर। तो दो सर एक एडजेसेंट तरीके से वर्टिसेस हैं। मतलब जो नोड 1 है और जो नोड 2 है उसका पेरेंट जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो सर जब हम जीरो से आगे मूव करेंगे तो हम जो उसका स्टेटस रहेगा जीरो का उसको हम चेंज कर देंगे, और फिर हम इस तरीके से ही हम पूरे मतलब आगे तक चलेंगे जब तक हम क्या डेस्टिनेशन क्या नोट। क्या स्टेटस, किस स्टेटस की बात कर रहे हैं आप? क्या होगा वो स्टेटस? सर जैसे अभी तो हमारा स्टेटस अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा सोर्स नोड है उसका स्टेटस जीरो ले लेते हैं। ओके, ओके ठीक है, तो क्या मतलब है जीरो तो का? सर जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो हम उसका स्टेटस 0 से 1 कर देंगे। नहीं वो तो मैं समझ गया, आपका 0 से 1 कर देंगे, बट व्हाट डू यू मीन बाय 0 and 1? दैट्स आई एम आस्किंग। क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा क्या है? हाँ सर समझ आपने गया। बोला 0 से 1 करना है, बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जीरो का मीनिंग क्या है और 1 का मीनिंग क्या है। आप क्या सोच रहे हैं कि जीरो क्यों कर रहे हैं और 1 क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि अगर हमारी नोड प्रोसेस्ड नहीं है तो मतलब हम ओके, जीरो उसको लेंगे, और जब ओके नोड प्रोसेस्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस एल्गोरिदम में एक्चुअली क्या होता है, जो आप ये 0 1 की बात कर रहे हैं, इसको हमने विजिटेड एरे से दिखाते हैं। एक विजिटेड एरे लेते हैं हम इसके लिए। जो आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी से कि दैट पर्टिकुलर नोड इज विजिटेड और नॉट। तो अभी जब आपने 0 बोला तो एक्चुअली वो नोड हमने विजिट की है, और विजिट करने के साथ ही हम उस नोड को क्या बोल देंगे कि हमने विजिट कर दी, इसलिए हम उसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे विजिट। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, ये 0 1 2 3 4 ये नोड के नंबर है, और 0 पहले तक 0 था, और जैसे विजिट किया उसको हम 1 कर देंगे, और बाकी अभी भी 0 है। ठीक है, यस ये सर। बात आई समझ में? ठीक है, तो आपने जैसे ही इसको क्यू किया, जैसे ही आपने इसको क्यू के अंदर डाला, अब आपको पता चल गया कि इस नोड पे हम पहुंच चुके हैं, और जिस नोड पे आप पहुंच गए आपने उसको विजिटेड में भी डाल दिया। ये दोनों काम आपने साथ में किए। अब आप तब तक एक लूप चलाएंगे जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। ठीक है, रन अ लूप टिल क्यू इज, या हम कहें अनटिल क्यू इज एम्प्टी। मतलब जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक इसको चलाते रहो। अभी चलाते रहने में क्या क्या चीजें करनी है हमें, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि अभी तो इसको निकाल दो फिलहाल। ठीक है, एम्प्टी करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको निकालना है। इसको, ये हमने बाहर निकाल दिया, और साथ में हम क्या देखेंगे, इसके नेबर कौन कौन से हैं। तो 0 के नेबर कौन कौन से हैं, 1 इज नेबर एंड 2 इज नेबर, राइट? तो 1 and 2
1 एंड 2 को देखा आपने, क्या ये 1 वो डेस्टिनेशन नोड है जिसको हम सर्च कर रहे हैं? 1 डेस्टिनेशन नोड है क्या? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको ये पता चल जाता कि ये डेस्टिनेशन नोड है, तो हम यहीं पे रिटर्न ट्रू कर देते, हम बोलते पाथ एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या वो विजिटेड में एग्जिस्ट करती है। अगर वो विजिटेड में होती तो इसका क्या मतलब है कि हम पहले विजिट कर चुके हैं, तो उसको बेचारे को इग्नोर कर दो, उसकी जरूरत नहीं है हमें कुछ अभी। लेकिन हमने देखा कि ये 1 वाली जो नोड है ये विजिटेड इक्वल टू यहाँ पे फॉल्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको विजिटेड इक्वल टू ट्रू कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसको 0 को हटा के और यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको साथ में यहाँ पे भी रख देंगे, दोनों काम साथ साथ में होंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे विजिटेड इक्वल टू ट्रू। आ गई बात समझ में? लेकिन अभी हमने 1 के लिए किया, 2 के लिए भी यही करना है। तो 2 के लिए क्या करेंगे, इसको 2 के, क्योंकि विजिटेड इक्वल टू फॉल्स है तो 2 यहाँ से उठाएंगे और क्यू के अंदर डालेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे 2 को 1 कर देंगे, तो ये भी विजिटेड इक्वल टू ट्रू हो गया। अब फिर से ऊपर जाएंगे, जब लूप चल रही है तो लूप चलने में क्या होगा, फिर से हम यहाँ से ये 1 को बाहर निकालेंगे, 1 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि डी क्यू जब एन क्यू किया तो डी क्यू भी करना है हमें। और डी क्यू करने में क्या करना है, जब 1 को देखा तो 1 के नेबर्स कौन कौन से, एक 1 का नेबर 3 है और एक 4 है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा 1 और 3, तो जैसे यहां से 1 को हटाया तो उसने देखा 3, तो 3 क्या एग्जिस्ट करता है आपके डेस्टिनेशन नोड में? 3 डेस्टिनेशन नोड है हमारी। यस यस सर। सर। तो डेस्टिनेशन नोड है, इसका मतलब हमको वो नोड मिल गई। ऐसे ही तो मिली है, 1 0 से 1 पे गए, 1 से 3 पे गए, तो मिल गई हमको नोड। तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब हमको आगे लूप नहीं चलानी, तो यहाँ पे हमको पाथ मिल चुका है। इस तरीके से बीएफएस ने काम किया। अगर आप इस ग्राफ के लिए देखो, सेकंड वाले ग्राफ के लिए, अगर यहाँ पे ये कहानी हो जाए, 0 से हम जाएंगे तो 1 पे जाएंगे और 2 पे जाएंगे, ठीक है। और जब 0 से हम 1 एंड 2 पे जाएंगे तो उसके बाद क्या होने वाला है, फिर हम 1 को ऐसे जैसे यहाँ पे हमने क्यू में डाला वैसे ही डालेंगे, और 1 के जो फिर हमारे नेबर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा और 2 आएगा, दोनों विजिटेड होंगे पहले से, जैसे यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपको। और जब दोनों विजिटेड होंगे तो फिर हमारा काम खत्म हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी लूप खत्म हो जाएगी और 1 भी बाहर निकल जाएगा, 2 भी बाहर निकल जाएगा, और ये पूरी की पूरी क्यू एम्प्टी हो जाएगी। और एम्प्टी होने पे हमको पता चलेगा कि हम तो डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं, जो कि डेस्टिनेशन अलग से था पड़ा हुआ यहाँ पे, और इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आ रही है बात समझ में क्या हुआ यहाँ पे? इस केस के लिए ट्रू रिटर्न कर देगा और इसके लिए फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर आप इसके लिए कोड देखना चाहो तो कोड में आपके लिए थोड़ा लिख लेता हूँ, सूडो कोड की फॉर्म में, आप इसको रन करवा सकते हैं। तो हमने जैसे ऊपर ग्राफ के लिए को बनाया था, एक फंक्शन बनाया था हमने, इज पाथ बीएफएस, और इसके अंदर ग्राफ पास किया हमने, सोर्स पास किया और डेस्टिनेशन पास किया, ये 3 चीजें हमने पास कर दी। तो सबसे पहले एक क्यू बनाएंगे, राइट, और क्यू में एन क्यू करेंगे। एन क्यू का क्या मतलब होता है कि क्यू के अंदर हम कोई नोड डाल रहे हैं, ठीक है। और क्यू आपको पता है किस तरीके से काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क एस एज विजिटेड, इस नोड को हमने विजिटेड इक्वल टू ट्रू कर दिया। तो इसके लिए एक एरे ले सकते हैं आप, विजिटेड एरे, जैसे हमने ऊपर लिया, और इस तरीके से उसको विजिटेड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं 0 1 की मदद से। जब इतना काम कर लेंगे, अब हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है। और आगे का काम क्या है, हमें एक लूप चलानी है, व्हाइल लूप। और ये लूप कब तक चलेगी, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं हो जाती। और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती हमको क्या क्या करते रहना है, सबसे पहले
हमको क्यू को डीक्यू करना है सबसे पहले तो। और क्यू को डीक्यू करने से क्या आएगा, यही वाली नोड आएगी, ठीक है। इसको हम मे बी वी नाम दे देते हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स है एक, इसीलिए हम इसको वी नाम दे दे रहे हैं। जब इतना काम हो जाएगा, इसके बाद क्या करना है हमें, फॉर ऑल नेबर्स u ऑफ v, इसके जितने भी नेबर्स होंगे v के, जो कि हम VFS में ट्रीट भी कर रहे हैं, जैसे 0 का नेबर 1 और 2 था, 1 का 3 और 4 था। वैसे 1 का नेबर सिर्फ 3 4 नहीं था, वो 0 भी था, बट 0 इसलिए उसमें डिस्कार्ड हो गया क्योंकि वो पहले से विजिटेड है, ठीक है। फिर हमने 3 और 4 पे ध्यान दिया। तो जितने नेबर्स हैं, सब नेबर्स के लिए क्या करना है, अगर जो आपने u लिया यहाँ पे, अगर u इज या u इक्वल टू डेस्टिनी, क्या लिया हमने, d लिया ऊपर ना, अगर ये d के बराबर है यानी कि डेस्टिनेशन नोड है, तो तुरंत आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया और आपको यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको चेक करना है कि जो आपने u नोड ली थी और वो विजिटेड में नहीं है, जो विजिटेड एरे हमने ऊपर लिया, अगर वो विजिटेड में नहीं है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, NQ कर देंगे उस पर्टिकुलर नोड को, जो कि आपने बाहर अभी यहाँ पे देखी थी कि उसके पड़ोस में एक नोड है जो कि विजिटेड नहीं है, तो आप उसको क्यू में डाल दो सबसे पहले। एंड उसके बाद क्या करना है, मार्क यू एज विजिटेड, इसके लिए भी आप मदद कर ले सकते हैं विजिटेड एरे की। और जब ये सारा काम खत्म हो जाए, मान लीजिए पूरी लूप खत्म हो गई है आपकी, लेकिन आपको वो पर्टिकुलर नोड नहीं मिली, तो फिर आपको आखिरी में एक रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो आप देख लो ये कोड अपना पूरा का पूरा, और मुझे बताओ अगर कोई डाउट है इसमें, तो समझ में आया कि नहीं आया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने समझा इसको एक एग्जांपल के थ्रू, और फिर हमने ये कोड लिखा। बताओ बच्चों, समझ में आया ये? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है? साइक्लिक वाले में क्या होगा सर? साइक्लिक वाले में क्या होगा, तो पहले की जो नोड्स होंगे ना बच्चे, वो तो विजिटेड होंगी ना पहले से। तो सर इसमें तो हर केस में फिर फॉल्स ही रिटर्न करेगा ना, जबकि क्यों करेगा भाई? एग्जिस्ट क्यों? करता है। नहीं, तो फॉल्स कहाँ रिटर्न किया, 3 वाले में दिखाई नहीं ट्रू रिटर्न किया अभी। सर एक बार फिर से बता दो ये वाला 0 1 2 वाला। ये नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला, इसमें 3 नोड है। देखो जब 0 पे था, ठीक है, उसने 0 यहाँ अंदर डाला क्यू के अंदर, और यहाँ विजिटेड मार्क कर दिया 1, ठीक है। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? 0 हाँ उसने सर। क्यू के अंदर डाला और यहाँ पे 1 मार्क कर दिया उसको। अब वो क्या देखेगा, इसको बाहर निकालेगा 1 को, ये 0 को पहले, और उसके 2 पड़ोसी हैं जो 2 नेबर्स, उनको उठाएगा और उनको चेक करेगा क्या वो डेस्टिनेशन नोड है, क्या 1 डेस्टिनेशन नोड है या 2 डेस्टिनेशन नोड है, दोनों में से कोई भी नहीं है। और अगर डेस्टिनेशन नोड नहीं है तो हमें कोड के हिसाब से क्या करना है, ये दोनों डेस्टिनेशन नोड नहीं, तो हमें देखना है क्या विजिटेड है क्या वो। अगर विजिटेड नहीं है तो उनको क्यू के अंदर डालना है और उनको विजिटेड बनाना है। तो हमने क्या किया, क्यू के अंदर 1 को भी डाल दिया और 2 को भी डाल दिया, और यहाँ पे दोनों को विजिटेड कर दिया। इतना समझ में आया? समझ गया सर, समझ गया। समझ गए? हाँ ठीक है। तो अब फिर जब 1 को देखेगा तो 1 के पास जाएगा वो, और 1 के पड़ोसी देखेगा, तो 1 के पड़ोसी कौन है, 0 और 2 है ना, बट वो देखेगा कि दोनों तो विजिटेड हैं पहले से। तो यहाँ देखो, अगर वो विजिटेड नहीं है तब डालता क्यू के अंदर, ना उसको डेस्टिनेशन मिला ना उसको ये दिखा कि वो विजिटेड नहीं है, तो उसने क्यू के अंदर भी नहीं डाला उनको। और ऐसे करके एक नेबर, ये वाला देखो, जब भी हम नेबर चेक करते हैं तो पहले उसको वहां से हटाते हैं, तो हमने 1 को हटाया फिर नेबर चेक किए,
तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिला, हम कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए। फिर हमने 2 को चेक किया, 2 के नेबर 0 एंड 1 मिले हमें, तो हमने देखा कि दोनों पहले से विजिटेड हैं। तो जब दोनों पहले से विजिटेड हैं तो उसने भी किसी को क्यू में नहीं डालने का मौका दिया, तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया। अब हम नीचे आए, हमने देखा कि वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, तब तक चलना था इसने जब तक क्यू एम्प्टी ना हो, लेकिन अब क्यू एम्प्टी हो चुकी है, तो इस केस में रिटर्न फॉल्स कर देगा, बोलेगा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है सर, आगे। हाँ, तो ऊपर वाले में तो पता चल गया क्यों हुआ ऐसा। ऊपर वाले में ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, u इक्वल टू अगर d है तो जब 1 के पड़ोसी निकले बाहर, तो 1 के पड़ोसी कौन कौन से थे, 3 एंड 4, बाकी तो विजिटेड थे, उनकी जरूरत नहीं है आपको, बट 3 एंड 4 नॉन विजिटेड थे। तो जैसे उसने 3 को देखा तो उसने देखा कि जो ये भी नोड बाहर आई है वो डेस्टिनेशन नोड के बराबर है, तो उसने तुरंत ट्रू रिटर्न कर दिया वहां पे। और कोई डाउट किसी को, कोई और डाउट? नो डाउट्स, ठीक है। तो अगर कोई और डाउट नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और ऊपर वाले ग्राफ का एग्जांपल लेके आप ऐसे ही डीएफएस बना सकते हैं। तो इस पाथ डीएफएस, और फिर से वही हमने एक ग्राफ लिया और सोर्स नोड ली और डेस्टिनेशन नोड ली, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ये क्या करेगा, ये क्यू नहीं लेगा, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे क्यू लिया था, देखो ये क्या लेगा, स्टैक लेगा। तो आपने एक स्टैक बनाया जो कि एस नाम से है आपके पास, और फिर क्या करेंगे, जैसे हमने क्यू में एनक्यू किया था वैसे हम यहाँ पे स्टैक में एक नोड, अच्छा मैंने दोनों का नाम ही सेम ले लिया, तो मुझे कुछ नाम और लेना चाहिए, इसको एस टी कर देता हूँ। तो एस टी डॉट पुश एस, यानी कि सोर्स नोड को पुश कर दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, मार्क एस एज विजिटेड। तो इसमें भी आपको एक विजिटेड वाला एरे बनाना है, और आपने ये कर दिया कि इसको विजिटेड कर दिया। अब विजिटेड के बाद क्या होगा, जब आपने विजिटेड इसको ट्रू कर दिया, तो अब फिर से वैसे ही लूप चलाएंगे आप जैसे आपने ऊपर चलाई थी। वहां पे देखो क्या लूप थी हमारी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है। तो अब यहाँ नीचे क्या करेंगे, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है। ठीक है, एस टी इज नॉट एम्प्टी, दोनों सिमिलर एल्गोरिदम है, बस दोनों में डेटा स्ट्रक्चर अलग इस्तेमाल होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। और जब हमने यहाँ पे एम्प्टी चेक किया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक वी नोड ली थी जो कि डी क्यू करने के बाद आई थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वी नोड लेंगे फिर से, और आप क्या कर सकते हैं, इसको जो भी स्टैक है आपका उसके टॉप में से चेक कर सकते हैं। टॉप क्या रिटर्न करता है आपको, जो स्टैक का टॉप होता है, स्टैक का टॉप क्या रिटर्न करता है, सोर्स एलिमेंट, जो टॉप पे वैल्यू होती है स्टैक की, जो टॉप पे वैल्यू होती है उसको एक्सेस करता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब टॉप में कौन सा एलिमेंट होता है आपका, जो बिल्कुल लास्ट में इंसर्ट होता है। जैसे अगर आप स्टैक की बात करें तो स्टैक ऐसा होता है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये टॉप वाली वैल्यू होगी जो लास्ट में वैल्यू इंसर्ट की होगी। ठीक है, तो आपने वी ले लिया, और देखो जैसे आप ऊपर काम कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, पहले एक डी क्यू कर रहे थे, उसको बाहर निकाल रहे थे, और फिर उसके बाद इसके पड़ोसियों को चेक कर रहे थे, यानी कि इसके नेबर्स को चेक कर रहे थे। वैसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे, जैसे आपने टॉप से एक्चुअली पॉप नहीं हुआ तो आप इसको पॉप भी कर सकते हैं। अगर पॉप रिटर्न करता है तो डायरेक्टली यहाँ पे पॉप भी कर सकते हैं, या अलग से एक फंक्शन लिख लीजिए जो कि आपको पॉप करने का काम करेगा। इसके बाद आपको चेक करना है फॉर ऑल नेबर्स ऑफ ऊपर से एग्जिट हम लिख लेते हैं ताकि दोनों सेम रहें, ऑल नेबर्स u ऑफ b। ठीक है, u ऑफ v। तो इसके सारे नेबर चेक करेंगे, सॉरी नेबर नहीं चेक करने एक्चुअली, एक सेकंड,
नेबर तो उस तरीके से हो गए जैसे हमने उसके लिए किया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेबर भी चेक कर, हम नेबर को ही चेक करेंगे, बट हमें पहले एक पे ही नीचे जाना है पूरा। तो इसको कैसे करेंगे आगे? आप नेबर चेक कर रहे हैं तो मान लीजिए जैसे आप यहाँ पे थे, ऊपर वाला ग्राफ अगर आप देखें तो आपने 0 से स्टार्ट किया, इसके नेबर कौन कौन से हैं? 1 एंड 2। तो मान लीजिए हम 1 पे गए पहले या 2 पे गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहुंचना तो हमें एंड में सॉल्यूशन पे है ही। तो हम जब सारे इसके नेबर्स को चेक कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अगर जो u इसका नेबर आया है एक, अगर वो डेस्टिनेशन के बराबर है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा पाथ हमको मिल चुका है जो हम सर्च कर रहे थे। तो इस केस में आप ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से वही काम करेंगे, आप चेक करेंगे कि ये जो u है अगर ये विजिटेड नहीं है, और अगर ये विजिटेड नहीं है तो क्या करना है आपको? ऊपर देख के बताओ, जैसे ये वाला था यहाँ पे, अगर ये विजिटेड नहीं होता तो हम क्या करते थे? ट्रू कर देंगे सर उसको। विजिट, एक तो विजिटेड इक्वल टू ट्रू कर देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, उसको जो आपका स्टैक है उसमें पुश भी कर देंगे। पॉप नहीं, हाँ, अभी push पुश करेंगे। करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो यू को पुश कर देंगे और मार्क यू एज विजिटेड, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। और एट द एंड अगर मान लीजिए लूप पूरी खत्म हो गई, ये वाइल लूप, और हमें तभी भी नहीं मिला कोई, तो हम क्या बोलेंगे? रिटर्न फॉल्स, राइट। तो एक बार इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं ऊपर वाले प्रोग्राम में कैसे काम करता है। तो अगर आप इसको देखो, ये BFS वाला था, ठीक है, तो इसको मैं पूरा नीचे एक बार ग्राफ बना लेता हूँ। जीरो 1 2 3 4 एंड 5 और शायद से ऐसा कुछ था। एंड दिस इज आवर सोर्स नोड एंड दिस इज आवर डेस्टिनेशन नोड, ठीक है। हमें अप्लाई करना है DFS, जो कि स्टैक की मदद से करेंगे। अब बताइए सबसे पहले क्या होगा, एक स्टैक बना आपका, स्टैक के अंदर आया 0, और एक विजिटेड वाला एरे भी हम अपने पास बना देते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सारे 0 हैं, और जैसे 0 हमारे पास आए इसको हमने 1 कर दिया, यानी कि ये विजिटेड हो गया। अब हमने देखा कि इसके पड़ोसी 1 एंड 2 हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप 2 पे आ गए, अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको बाहर निकालेंगे और उसके बाद यहाँ 2 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये अनविजिटेड था तो इसको हम कर देंगे विजिटेड। अब इसके बाद क्या करना है, फिर से 2, अब हमें ऐसा नहीं करना है कि 1 को भी देखा, ठीक है। अब इसी को देखना है 2 को। BFS में क्या हो रहा था, इसको और इसको साथ में प्रोसेस कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 2 से आगे बढ़ेगा और देखेगा कौन कौन इसके पड़ोसी हैं। तो इसने देखा 0, तो 0 तो ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है। अब 4 की बात करेंगे, तो 4 नॉन विजिटेड है, इसको यहाँ से पहले विजिटेड बना देते हैं, और यहाँ से 2 को पॉप कर देंगे और 4 को डाल देंगे। सिमिलरली ऐसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे, और 4 का नेक्स्ट कौन सा है, 5th। तो 5th यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजिटेड नहीं है अभी तक, इसको विजिट कर देंगे और 4 को पॉप करके यहाँ 5th डाल देंगे, ठीक है। तो ये भी विजिट हो गया। अब ऐसे आगे बढ़ेंगे, 5th के पास जाएंगे और 5th से आगे देखेंगे कौन सा एग्जिस्ट करता है, तो ये देखिएगा 3। तो जैसे ये 3 निकालेगा बाहर, इसको दिखेगा कि ये ही तो डेस्टिनेशन नोड है जिसको हम सर्च कर रहे थे।
तो वहीं पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ये वाली कंडीशन। तो इससे पता चल जाएगा कि पाथ एग्जिस्ट करता है। ये बात आई समझ में सबको? बच्चों समझ में आया सबको ये कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। ठीक है, ऐसे आप अभी 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए ये इस वाले ग्राफ पे, इस पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं आप इस छोटे वाले ग्राफ पे, क्योंकि इसमें पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्राई कीजिए ये आप लोग, फिर मुझे बताइए कि कैसे कैसे काम कर रहा है। सर यहाँ पे हम स्टैक यूज कर रहे हैं, तो ये रिकर्जन से भी तो हो सकता है ना? रिकर्जन से हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, रिकर्जन से भी हो सकता है। एक्चुअली एक तरीके का रिकर्जन ही तो चल रहा है देखा जाए तो। आप उसके उसी नोड के अंदर 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 जाते जा रहे हो। ट्री ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन आप रिकर्जन से कर सकते हैं इजीली, मतलब ज्यादा आसान रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको? इस पे कैसे काम करेगा बताओ, इस छोटे वाले ग्राफ पे बता दो कोई एक आप में से। बताओ बच्चों। बोलो, कुछ तो बोलो, बिल्कुल शांत क्यों? सर पहले तो 0 के लिए चेक करेगा, पहले 0 के लिए चेक करेगा, ठीक है। और 0 को स्टैक में डाल देगा और वहाँ ट्रू कर देगा विजिटेड एरे में। ठीक है। ठीक है, फिर इसके एडज सेट में जाएगा, मान लिया पहले 1 पे जा रहा है, हम्म। तो 1 पे गया तो 1 पहले चेक करेगा ये डेस्टिनेशन नोड है, तो चेक, ठीक है। फिर वो फॉल्स आएगा, मतलब डेस्टिनेशन नोड नहीं है, तो फिर उसको कहते हैं 0 को वहाँ से पॉप करेगा और 1 को पुश कर देगा। ठीक है। 1 को पुश करने के बाद फिर आगे जाएगा 1 से 2 में, हम्म। फिर से इसको चेक करेगा डेस्टिनेशन नोड है नहीं है, अब ये भी ठीक है। डेस्टिनेशन नोड नहीं है, तो फिर वहाँ से 1 को पॉप करेगा और 2 को डाल देगा। ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे करके पूरा कहते हैं स्टैक खाली हो जाएगा हम्म। और ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको मिलेगा ही नहीं कभी वापस, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डीएफएस और वीएफएस से ये फाइंड आउट कर लिया कि कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो आप इस वीक में काम कर लेंगे, इनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कुछ ओपन किया था। ये अगर कोड देखो आप, ये कोरमैन वाली बुक का है, ठीक है, डी बीएफएस के लिए। अगर सिर्फ बीएफएस की बात करो, अभी तो हमने बीएफएस के अलावा हमने ये भी देखा कि पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो अगर आप स्टेप वाइज देखें इनको रिप्रेजेंटेशन को, तो ये कुछ इस तरीके से कर रहा है। इसमें कलरिंग का भी कुछ ध्यान रखता है, अगर आप देखो तो। आपको क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक वर्टेक्स के लिए पहले एक वर्टेक्स को वाइट कर रहा है और
उसकी डिस्टेंस कुछ इन्फिनिटी कर दे रहा है और उसके जो पेरेंट है उसको नील कर दे रहा है। ये इस हर एक वर्टेक्स के लिए काम कर रहा है सबसे पहले। फिर जब सोर्स को स्टार्ट कर रहा है तो उससे उसको ग्रे करना स्टार्ट कर रहा है, उसकी डिस्टेंस 0 कर रहा है, उसके पेरेंट को नील कर रहा है, क्योंकि ये सोर्स की बात हो रही है अभी। तो इतना तो इसने सोर्स के लिए किया, जो ये स्टार्टिंग की 7 लाइन है। फिर क्यू बनाता है, क्यू में सोर्स को डालता है, और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती है, जो हम कर रहे थे वही यहाँ पे किया हुआ है, और फिर डी क्यू करना स्टार्ट करता है। हर एक एडिशन नोड को देखता है, अगर उसका कलर व्हाइट है, ठीक है। एक्चुअली ये जो कलर की बात कर रहा है, जो हमने विजिटेड वाला पार्ट बनाया था ना, वो उसी तरीके से इसको कर रहा है। तो अगर कलर व्हाइट है, इसका मतलब वो विजिट नहीं हुई है। फिर उसका कलर क्या करता है, वो ग्रे कर देता है। यहाँ पे देखो, इसने कलर ग्रे लिया है, यहाँ पे कलर ग्रे किया है। तो इसने सबसे पहले सोर्स को विजिटेड में डाला था स्टार्टिंग में, अगर आप इस लाइन को देखो तो। और फिर ये डिस्टेंस बढ़ाता जाता है एक एक करके, और हर एक नोड जो कि आ रही है बाद में, जैसे यहाँ पे u के एडजेसेंट में जितनी नोड है, जैसे v एडजेसेंट में नोड है, तो उसके पेरेंट को u बना रहा है और उसकी डिस्टेंस 1 1 प्लस करता जा रहा है, और फिर उस नोड को q में डालता जा रहा है, जो कि हमने सारा वही काम किया। और फाइनली जब कोई नोड वहां से बाहर निकाल रहे हैं, उसको ब्लैक कर दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से BFS का इसने एल्गोरिथम यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ है, कोडमैन में। और अगर आप इसके एग्जाम्पल देखो, ये बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जैक्टली, मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने ना खुद बनाया है, ना जिस वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ, ना इन्होंने खुद बनाया है। तो अगर आप ये ग्राफ देखो, ग्राफ में क्या कर रहा है, सोर्स नोड एक है यहाँ पे S नाम की। सबसे पहले इसने देखा कि इसके 2 या 3 या जितने भी एडिशन नोड है कौन कौन से, तो R और W इसको एडिशन नोड मिले, ठीक है। तो जब इसे S इसमें डाला, उसके नेक्स्ट में इसने W और R दोनों को डाल दिया। और इसको ब्लैक क्यों कर दिया इसको, क्योंकि ये पूरी तरह से विजिट हो चुका था, ठीक है। ये पूरी तरह से विजिट हो चुका था, इसलिए इसको ब्लैक कर दिया, जो कि आपने एल्गोरिथम में देखा भी ऊपर, ठीक है। और उसके बाद इनके साथ में डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहा है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस मेंटेन करने वाला तरीका क्या है, अगर आपको बोला जाए कि दो नोड के बीच डिस्टेंस कितनी है, यूजिंग BFS फाइंड आउट करना है, तो आप इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जाम में भी जब आपका एग्जाम होगा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा कोड तो लिखने को आएगा नहीं, आपको ग्राफ भी इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, सूडो कोड लिखना पड़ता है जनरली। तो अगर इतनी एल्गोरिथम लिखेंगे तो इससे आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। एक तो आपको अगर पाथ फाइंड आउट करना है 2 नोड के बीच, वो भी कर लेंगे इस तरीके से जैसे हमने अभी किया था। आपको बस ये चेक करना है कि जो ये यहाँ पे नोड ये बाहर निकाल रहा है, यहाँ से ये जो नोड आ रही है V, जो कलर व्हाइट चेक कर रहा है, वो आपको चेक करना है कि जो V नोड है वो डेस्टिनेशन के बराबर है कि नहीं है। तो इससे आप ये फाइंड आउट कर लेंगे पाथ एग्जिस्ट करता है। और अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे की गई है। तो W एंड R निकाले बाहर, और इनको Q के अंदर डाल दिया, और इसको बाहर निकाल दिया। अब इनमें से जो नोड पहले ही इस Q के अंदर गई थी, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने W को पहले डाला था, तो W से इसने देखा कि कौन कौन सी नोड हैं जो इसके नेबर्स में एग्जिस्ट करती है। तो एक तो S करती है, जो कि पहले से विजिट हो चुकी थी, इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं। T एंड X को छेड़ता है, तो T एंड X को यहाँ डाल देता है अंदर, और W को बाहर निकाल देता है। सिमिलरली उसके बाद R के लिए देखा जाएगा, और R के अगर देखा जाए संपर्क में कौन कौन सी नोड है, या उसके बगल में कौन कौन सी नोड है, तो V नोड है, वो भी उसने यहाँ अंदर डाल दी। हमारे पास इस तरीके से नोड आती रहती है। और फाइनली Q एम्प्टी हो जाती है, लास्ट में सारी नोड्स ब्लैक हो जाती हैं। तो व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक, इन 3 कलर से इसने रिप्रेजेंट किया है इस सारी प्रोसेस को। और हर एक नोड के साथ इसकी डिस्टेंस भी अटैच है, अगर आप देखो, ठीक है। तो अभी फाइनली सोर्स से कहां तक आप कितने नोड्स में पहुंच सकते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये BFS का एप्लीकेशन है। कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई क्वेश्चन है किसी को इसमें? सर जो लास्ट में एरे बच के आएगी वो डिस्टेंस वाली एरे होगी ना सोर्स से? वो एक उसके लिए एक एरे अलग से बना लीजिए ना आप। सर इसमें जो पहले से बनाई तो है, इसमें इन्फिनिटी कहते हैं, डिक्लेयर कर रखा है सबको। अच्छा हाँ, वो इन्फिनिटी वाली जो एरे, हाँ हाँ, वो तो उससे डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। हमने कहीं देखा था ना इन्फिनिटी वाला, कहाँ था, कौन सी एरे थी वो, यू वाली, UD एरे तो नहीं बनाया यार इसने, कहीं पे कहाँ डाला इसने, या ये समझ लीजिए कोई स्ट्रक्चर टाइप का इसने बना रखा होगा ना,
आप एरे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसने एक्चुअली क्या कर रखा है, जो हर एक नोड के साथ डिस्टेंस, ये समझ लीजिए ना, जैसे हमारी कोई ग्राफ होता है तो ग्राफ की नोड, हर एक नोड क्या होता है अपने आप में, एक ऑब्जेक्ट के समान या एक क्लास के समान उसको मान लीजिए, ठीक है। या जैसे हम पूरे ग्राफ को एक क्लास मान लें, तो हर एक के साथ कुछ कुछ चीजें होंगी, हर एक नोड के साथ एक स्ट्रक्चर होगा अटैच। वो स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसका कलर उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसका पेरेंट कौन सा है, और उसकी डिस्टेंस क्या है। तो जब आप उस पर्टिकुलर नोड की u डॉट डी प्रिंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी डिस्टेंस कितनी है सोर्स से, राइट। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, इसमें एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी। तो एक क्वेश्चन हमने सबसे पहले देखा कि दो नोड के बीच कोई पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, दैट इज वन थिंग। सेकंड, उनकी नोड की डिस्टेंस कितनी है सोर्स से। एंड थर्ड थिंग, कि पाथ प्रिंट करना है आपको, जैसे मैंने बोला सोर्स से लेके आपको पाथ प्रिंट करना है वाई तक। तो सोर्स से वाई तक का पाथ प्रिंट करने का क्या तरीका होगा। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को या इस सूडो कोड को, तो हर एक नोड के साथ इसने पेरेंट को भी सेव किया हुआ है, राइट। तो अगर हम y के पेरेंट पे आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे यहाँ पे y बची हुई है आखिर में, तो y का पेरेंट कौन सा था इनमें से, x था, x के थ्रू आया था। x का पेरेंट कौन था, w था, w का पेरेंट कौन था, s था। तो s से y तक का पाथ हमको मिल जाएगा s w x y। तो इस तरीके से आप सोर्स से लेके अदर नोड्स तक के पाथ भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीन प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, अगर BFS एंड DFS के थ्रू देखा जाए तो वी हैव 3 प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट इज check if path exist two nodes, print distance of a node from source। या इसको आप इस तरीके से भी कुछ लिख सकते हो, print shortest path from source to destination। ये भी शॉर्टेस्ट पाथ भी हम इससे निकालते हैं। एंड थर्ड इज print path from source to destination। ठीक है बच्चों, समझ में आपको किस तरीके से करनी है चीजें। यस सर। आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देखा जाए, अगर जिस तरीके से आपने ये BFS वाला किया, ऐसी कोरमैन में, क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा किस तरीके से एल्गोरिदम काम करती हैं। ये भी मैं आपको कोरमैन का ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो उस बुक में है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये देखो यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी इसी बुक से लिया गया है, CLRS 09 या सिमिलर एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें भी हम वाइट, ग्रे एंड ब्लैक नोट्स की बात करते हैं और इस तरीके से कुछ एल्गोरिदम काम करती है। देखिए, तो सबसे पहले नोट्स को वाइट किया हुआ है, यहाँ पे इनिशियलाइज द कलर टू वाइट। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और भी है, टाइम की बात की गई है। इस टाइम को ध्यान रखना भी जरूरी है। आपने एक लेक्चर आया था एल्गोरिदम में कुछ दिन पहले, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, वो देखा था आपने? टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग देखा आपने कि नहीं देखा? यस सर। देखा था, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आपने देखा होगा टाइम की कुछ बात तो रही होगी उसमें। अगर नहीं रही होगी या अगर आपने नहीं देखा उस लेक्चर को, तो एक बार आप देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि उसमें कुछ टाइम का भी कुछ है उसमें, ठीक है। वो टाइम का क्या चीज है उसमें, क्यों उसमें टाइम की बात हो रही है, थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर ऑल यू दैट बिलोंग्स टू बी, अगर कलर व्हाइट है
तो कलर व्हाइट का मतलब है कि अभी हमने उस नोड पे विजिट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो विल स्टार्ट डीएफएस विजिट। ठीक है, और ये हर एक नोड के लिए कर रहा है। इसका मतलब बहुत सारी नोड, जैसे हमने इस ग्राफ में देखा, ये वाला ग्राफ था हमारा, ये वाला ग्राफ, तो एक्चुअली ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं, डिसकनेक्टेड ग्राफ है। 0 1 2 एक ग्राफ है और 3 उसमें एक अलग ग्राफ है। ठीक है, तो ये पहले डीएफएस विजिट 0 पे करेगा, 0 से स्टार्ट करते 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे, फिर 0 पे वापस आएगा, तो फिर वापस चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से टाइम का यहाँ पे ध्यान कैसे रखा जाता है मैं आपको बताता हूँ। एक और नया पेज हम क्रिएट करते हैं। तो 0 1 2 एंड 3 यहाँ से विजिट करना स्टार्ट करता है। इस पे हम लिखते हैं एक इस तरीके से लिखा जाता है, देखो, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये सोर्स नोड है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस, तो इसका स्टार्ट टाइम होगा 1। इसके बाद अगर हम 1 पे गए तो इसका स्टार्ट टाइम होगा 2 और इसका स्टार्ट टाइम होगा 3। अब फिर वापस आएंगे तो ये, एक सेकेंड है, तो 3 पे आए। अब जब इसने 1 को देखा तो ऑलरेडी विजिटेड था, वापस जाना शुरू करेगा, तो देन इसका एंडिंग टाइम 4, इसका 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये वाला जो कंपोनेंट है ये पूरा हमने विजिट कर लिया है। अब इस पे वापस आएंगे 3 वाले पे, क्योंकि हम सिर्फ व्हाइट नोड के लिए ये चेक करते हैं। देखो यहाँ पे, इफ कलर ऑफ नोड इज व्हाइट देन वी आर गोइंग टू डू डीएफएस विजिट। और डीएफएस विजिट में यही सारा काम हो रहा है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखा दिया इतनी जल्दी में। ठीक है, सिमिलरली जब उसने देखा कि ये वाली नोड पहले व्हाइट थी बट ये बाद में अगर देखा जाए तो ब्लैक हो गई होगी, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ अभी यहाँ पे, तो ये नोड फिर ब्लैक हो गई होगी बाद में इस तरीके से, लेकिन ये वाली नोड अभी भी व्हाइट है, तो फिर इस पे भी डीएफएस विजिट चलाएगा। और 1 से लेके 6 तक तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यहाँ पे 7 आएगा, और क्योंकि एक अकेली नोड है तो 8 भी यहीं पे आ जाएगा, और इस तरीके से आपकी डीएफएस विजिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो फिर से कि डीएफएस विजिट कर क्या रहा था। डीएफएस विजिट क्या करता है, सबसे पहले कलर को ग्रे करता है और उसका टाइम बढ़ाता है एक। तो जब अगर 0 टाइम था तो इसने पहले 1 किया इसका टाइम और फिर आगे बढ़ा। अब उसके एडजेसेंट नोड में देखता है, अगर किसी का कलर व्हाइट है तो फिर डीएफएस विजिट करता है। यहाँ पे रिकर्जन चल रहा है, ये देखिए, ये है खास बात। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट किया 1 से तो 2 पे गया और उसने देखा व्हाइट है, तो फिर इसने यहीं पे डीएफएस विजिट स्टार्ट कर दिया। इसीलिए यहाँ से नीचे जाता है ये, और वापस आने की बजाय। अगर बीएफएस में देखो आप तो एडजेसेंट नोड में वापस आता रहता है, लेकिन यहाँ पे डीएफएस विजिट फिर से चालू हो गया है। तो डीएफएस विजिट का मतलब है कि फिर से इसके अंदर घुस गया, यानी कि रिकर्जन चालू हो गया। 2 पे गया, उसने देखा इसका एडजेसेंट कौन कौन है, ये इसका एडजेसेंट ये मिला इसको, ये वाला थर्ड वाली जो नोड है। फिर इसने यहाँ पे देखा ये व्हाइट है, तो फिर से डीएफएस विजिट चालू कर दिया। अब देखो कब तक डीएफएस विजिट चलेगा, जब तक इसका पड़ोसी व्हाइट है जो कि एडिसेंट नोड है। तो क्या इस नोड का कोई पड़ोसी व्हाइट है, ये वाला या ये वाला, कोई भी व्हाइट नहीं है। तो फिर क्या करेगा इस केस में, कलर को ब्लैक कर देगा। यानी कि इन नोड्स में, इन तीनों नोड में सबसे पहले जो नोड ब्लैक हुई होगी, ये वाली नोड ब्लैक हुई होगी, फर्स्ट नोड टू गेट ब्लैक। इसके सिग्निफिकेंस हैं बहुत सारे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस कि ये सबसे पहले विजिट हो चुकी है कंप्लीटली। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऐसा कुछ है। तो जब ये ब्लैक हो गई तो उसके बाद क्या होगा, इसका टाइम भी बढ़ा दिया हमने, और इसका जो फिनिश कब हुआ वो टाइम हमने यहाँ से जो भी आया था वो रख दिया। यानी कि ये 4th टाइम पे फिनिश हुई, उसके बाद ये 5th टाइम पे फिनिश हुई, 6th टाइम पे फिनिश हुई, और इस तरीके से ये सारी की सारी नोट कवर हो गई है। बट अब आप देखो, फॉर ऑल यू बिलोंगिंग टू बी, तो हमने 1 से स्टार्ट किया था अगर देखा जाए तो ऐसे ही वो इससे स्टार्ट, ये एक्चुअली 0 है, 0 से स्टार्ट किया था, फिर 1 पे चेक करेगा। बट 1 पे अगर आप देखो तो कलर व्हाइट है क्या, इसका कलर व्हाइट नहीं है, क्योंकि वापस आ चुके हैं और ये ब्लैक हो चुकी है। तो इस पे भी कुछ नहीं करेगा, डीएफएस विजिट नहीं होगा इस पे। फिर इस नोड को पकड़ेगा, ये भी व्हाइट नहीं है,
तो इस पे भी डीएफएस विजिट अब नहीं होगा यहाँ से ऊपर से, लेकिन ये वाली नोड बची हुई है, इस पे डीएफएस विजिट करेगा और डीएफएस विजिट करने के बाद इसका टाइम कुछ रखेगा जो ऑलरेडी टाइम चल रहा होगा, एडसेंट नोड को देखेगा, एडसेंट कोई नोड है नहीं तो डीएफएस विजिट करने की जरूरत नहीं है, इसका कलर ब्लैक करेगा और टाइम बढ़ा देगा, जो कि हमने यहाँ पे कर भी दिया ऑलरेडी। तो इस तरीके से डीएफएस काम करता है। तो अगर हम इसके थोड़ा कहीं नीचे नीचे देखेंगे तो इसकी रन टाइम और डीएफएस फॉरेस्ट वगैरह इसने बना रखा है, इसमें इन चीजों का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप में से कोई गेट वेट की तैयारी कर रहा है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये बैक एज, क्रॉस एज, फॉरवर्ड एज, इसका अभी ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने का, मैं कभी फ्यूचर में इसको डिस्कस करूंगा। लेकिन इसमें ये ट्री एजेज, बैक एजेज, फॉरवर्ड एजेज, क्रॉस एजेज, तो गेट वेट की तैयारी कर रहे हैं तो पूछा जाता है कि कौन सी बैक एज है, कौन सी क्रॉस एज है, कौन सी फॉरवर्ड एज है, सो ऑन। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा अभी हो सकता है इस एग्जाम के लिए आप ज्यादा ना देखें इसको, बट इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ सकती है। बाकी आप और क्या क्या कर सकते हैं, साइकिल फाइंडिंग वगैरह भी इनसे कर सकते हैं। ठीक है, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग एक्चुअली क्या होता है, आप देख लेना एक बार वो वीडियो। इसमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या होता है, हम एक सॉर्टिंग या एक ऑर्डर बनाते हैं वर्टिसेस का। जैसे यहाँ पे देखो, ये इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात करना चाह रहा है ये। ठीक है, हम डिपेंडेंसी, जैसे आप कई बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे पाइथन में आपने कई बार इंस्टॉल करते हुए एरर देखी भी होंगी कि वो आपसे डिपेंडेंसी मांग रहा है कि ये वाले सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी इंस्टॉल किए नहीं है आपने। ठीक है, तो अगर आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किए तो उसमें एक्चुअली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग टाइप की होगी वहां पे भी, जो आपको ये बताएगा कि ये सॉफ्टवेयर्स के लिए हमारा ये सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, तो एक डिपेंडेंसी टाइप की वहां पे होगी, तो उसके लिए हमें टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की जरूरत पड़ती है। या कोई भी और कोई चीजें जहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन हो कि कोई डिपेंडेंसी है, जहाँ पे भी डिपेंडेंसी की बात आएगी वहां पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की आप बात कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया बच्चों सबको? यस सर। ठीक है, तो क्लियर है सब, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। और इसके बाद फिर आपको अपना जो भी असाइनमेंट वगैरह दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी कर लिए, तो होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। और वैसे मैं ये अभी वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, तो बहुत सारे लोगों को जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है वो इसको देख सकते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए हमेशा इतना समझना डिफिकल्ट होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट स्टिल ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट हो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो ठीक है, वाइंड अप करें आज के लिए। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव Thank एनी you, sir. डाउट यू कैन आस्क मी।